Hello students, good afternoon, and I hope all of you must be doing good. After the result of CLAT and ALET, I wish that you all must be feeling elated, you are going to a good college, and if that is the case, congratulations to you. But I also know that many students appear for this exam with a limited number of seats, so it cannot be true that all of them are going to good colleges. Many of you are left behind and are feeling a bit disheartened, are feeling a bit sad that even after putting in the effort, you are not securing a seat. But it shouldn't act as a barrier or act as an obstacle in your legal journey, in your legal career. Because think about it, that there was no NLU before 1987. But people studied law in India and excelled at it even before that. So there were good colleges in India even before the first NLU came into picture in 1987. And with that note, I am going to tell you names of a few colleges and entrance tests which can guarantee you a rank in some good institute, some good college, which act as a platform to boost or to head start your legal career. Now with that note, I want you all to stick towards the end of the video because there I will also be giving you a few practical tips of how to ensure success in these examinations which I will be discussing. But at the same time, I want to start with a simple notion, and that is that there are two kinds of students who might have appeared for CLAT this year. There are students who have completed their 12th and have taken a drop, and then there are those who are going to appear for 12th in a coming month or so. So for those students who are already or had already taken a drop, I would advise you against taking another drop and going for CLAT 2026. So for you, this video is going to be extra significant because here I am going to tell you what other options you could look out for. But for the students who are still in class 12 and who have appeared for the CLAT for the first time but couldn't secure a good rank, and they are feeling that they could have done a little bit more preparation, they could have put in a little bit more effort, and with that they could have gotten a good rank as well. So for them, my simple suggestion is that you should go in that direction of taking a drop because that is beneficial. Give 1 year time. Nobody in your college will ask you that did you take a drop or not. It is not a relevant thing after college. So might as well just remove this thinking from your mind that it might affect your future prospects because it does not. Just take a drop and appear for CLAT next year and get good rank and a good college. But yeah, I at the same time would advise against another drop. So for them, there is a need that they must get into a good college, and for that, again, you need to pass a few competition, a few examination. But be assured that अभी जो examination की बात हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें वो level का आपको competition या toughness नहीं दिखेगा जो आपको CLAT में दिखता है. लेकिन ये भी कॉम्पिटिटिव है, नॉनदलेस इंडिया का एग्जाम है, तो आपको इजीली तो एंट्री यहाँ भी नहीं मिलने वाला है. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्टली मैं आपको बताने वाला हूँ मेन चीज़ें इन एग्जाम के बारे में, और आशा करूँगा कि आप लोग खुद से खुद को अपडेटेड रखेंगे, गूगल का सहारा लेंगे, इन वेबसाइट्स पे जाएंगे इन कॉलेजेस के, और रेगुलर अपडेट्स खुद को करते रहेंगे, क्योंकि डेट्स आके अगर निकल गई देन आपके पास ये मौके भी छूट जाएंगे, और ये सब ऐसे मौके हैं जिससे आपको यहाँ इंडिया में बेस्ट लीगल एजुकेशन के रास्ते खुल सकते हैं. तो पहला MSCET लॉ. हर एक लॉ एस्पिरेंट जो सीरियस होता है उसको कभी ना कभी MSCET के बारे में पता चलता ही है. मैं चाहता तो हूँ कि ना पता चले, CLAT के जरिए उसका काम हो जाए, बट जनरली उनको पता रहता है कि देयर इज एन एग्जाम जिस पर हम फॉल बैक कर सकते हैं अगर हमारा CLAT नहीं होता है, दैट्स MSCET. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेंट्रल एग्जाम है ये, एंड इस एग्जाम में आपको 5 साल LLB करने का मौका मिलेगा, जस्ट लाइक एनी NLU. ड्यूरेशन इसके 2 घंटे के होते हैं, 150 क्वेश्चन होता है. पॉजिटिव आपका जो सही क्वेश्चन है उस पर 1 मार्क्स मिलता है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो एडवाइजेबल है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ. जो की डेट्स है उसमें आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन फरवरी के टाइम पे आ जाता है, तो आप उसको थोड़ा चेक करते रहेंगे, थोड़ा आगे पीछे भी रह सकता है. एंड देन एग्जाम डेट जो है वो लास्ट अप्रैल से मई में रहता है, अगेन आपको चेक करते रहना है, थोड़ा आगे पीछे भी रह सकता है. एग्जाम का स्ट्रक्चर तो मच लाइक जो पहले CLAT में होती थी लीगल रीजनिंग, उस टाइप पे लीगल रीजनिंग पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन के. जीके और करंट अफेयर्स का एक आपको मिक्स मिलेगा जो 30 क्वेश्चन का होगा. लॉजिकल एनालिटिकल, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग के बाकी जो टॉपिक है, डायरेक्शन साइंस हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको 40 मिलेंगे. इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपके अप टू 10th लेवल का जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है उससे क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, तो 150 क्वेश्चन है. 12th में आपको बस 45% मिनिमम आना चाहिए एज अ जनरल कैंडिडेट, एंड वो आपको क्वालिफाई करा देता है फॉर अपीयरिंग टू दिस एग्जामिनेशन एंड गेटिंग इनटू अ कॉलेज. What are the colleges that you will be getting if you get a good rank? So these are the colleges: Government Law College, GLC Mumbai, a very reputed one, a very old college, जहाँ से बहुत सारे हमारे चीफ जस्टिसेस एंड जस्टिसेस जो सुप्रीम कोर्ट में वो भी पढ़े हैं. ILS कॉलेज पुणे is another one. रिजवी लॉ कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ एंड न्यू लॉ कॉलेज आर अदर ones. So ये पांचों अच्छे कॉलेज हैं जिसमें आप MSCET के जरिए जा सकते हो.
बट याद रखिएगा कि इसमें आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए जो सीट्स है वो काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है फॉर मराठी पीपल। सो मुश्किल से आपको टॉप 2 कॉलेजेस जो इसमें जीएलसी और आईएलएस, उनको मिला के कुछ 60 के अराउंड सीट्स मिलते हैं जो बाहर वालों के लिए हो, तो इट बिकम्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हियर एज वेल at that stage. But if you have prepared well for CLAT, आपके लिए ये उतना मुश्किल नहीं होगा, आप इस पे compete कर सकते हो, given that you have put in the effort for CLAT। आपने उतना जो एक scar tissue है, एक जो लेवल ऑफ इंड्योरेंस है, एक परसिवियरेंस है, एक कंसिस्टेंसी आपने अगर वो रखा है, तो ये एग्जाम आपके लिए केक वॉक है। मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे जो क्लैट के बाद बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट अगर नहीं दिखता है, तो 2-3 महीने बाद उनका और 4 महीने बाद उनका एक अच्छा सा मैसेज आता है कि सर हमें सीटी दी है, पॉजिटिव है, और कुछ दिन बाद वो हमें सीटी कॉलेज में भी चले जाते हैं। आईएलएस हो गया, जीएलसी हो गया, बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग और दे आर बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी देयर। सो दैट्स अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। Now about the registration fee, so this can vary, but अभी जनरल के लिए 800, रिजर्व के लिए it's 600, and other examination इसके बाद है CUET। Now CUET में आपको क्या सोचना है कि जितने भी टॉप लेवल के कंट्री के अपने कॉलेजेस है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, उन सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में है, वो पहले अपनी एडमिशन खुद लेती थी अलग अलग एग्जामिनेशन के जरिए, अब उनको मर्ज करके CUET निकाल दिया गया। इस एग्जाम में बहुत एक यूनिक पैटर्न इन्होंने रखा था जिसमें आपको 3 सेट्स ऑफ पेपर देने होते थे, बट इस बार से उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गई हैं। अब आपको एज अ लीगल स्टडी के लिए अगर आपको ये करना है तो आपको बस 100 क्वेश्चन देने होंगे, जिसके 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। 5 मार्क्स मिलते हैं सही पे और 1 मार्क्स आपका घटता है नेगेटिव पे। तो जो परसेंटेज ऑफ नेगेटिव मार्किंग है वो क्लैट से थोड़ा कम है। क्लैट में जहाँ 25% है, यहाँ पे आपको बस 20% देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इसका भी फेब में शुरू हो जाता है, मई के अराउंड इसका एग्जाम होता है। और अगर आप पूछेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको 2 तरीके के टेस्ट होंगे। एक लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें आपको कोई भी एक लैंग्वेज पेपर लेना होगा आउट ऑफ 13 अवेलेबल पेपर। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो आपको इस टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर बेस्ड। मतलब से आपको जनरल टेस्ट की बात करें तो उसमें भी आपको क्यूटी मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, एनालिटिकल रीजनिंग मिलेगा, जीके, करंट अफेयर्स एंड सच। तो आपको बेसिकली क्लैट का जो लीगल को छोड़ के बाकी का सेक्शन था वो इसमें कवर हो जाता है, एंड इंग्लिश वाला इसमें कवर हो जाता है, एंड दैट मेक्स इट CUET। क्वेश्चंस 50-50, 5 मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स 500। नेगेटिव आपको 1 मार्क्स पे गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, एंड +5 का पॉजिटिव मार्किंग है। तो दिस इज द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर हियर। अगेन जो यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है वो आपको ये सब मिलेंगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि CUET को के अंदर मैंने ड्यू डाला है, बट ड्यू अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। हो सकता है जरूर, बट अभी तक ड्यू क्लैट के रिजल्ट के जरिए ले रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। एंड अगर उसके जरिए पता चलता है कि ड्यू इज एक्सेप्टिंग क्लैट मार्क्स ओनली, देन तो कोई बात ही नहीं है, और एल्स CUET के अंदर ही हमें वो भी मिल सकता है। BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड मल्टीपल अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको एक बेसिक कॉस्ट में, नॉमिनल कॉस्ट में आपकी लीगल एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो आप, एंड अच्छी एजुकेशन एक अच्छी जगह से, एक रिसोर्सफुल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आपको वो डिग्री मिलेगी। तो ये बात का ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जाम होगा, CUET की वेबसाइट पर आपको इसके इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलर चेक करते रहना है। क्या क्या टेस्ट्स के आपको तरीके हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, तो मैं वही बोलूंगा अगेन। इंग्लिश के लिए जैसा आपने क्लैट में करा था, जीके, करंट अफेयर्स सेम क्लैट का, एनालिटिकल एलेट के लिए जो आपने तैयारी करा होगा, लॉजिकल रीजनिंग अगेन क्लैट के लिए जो आपने तैयारी करा होगा, इस 4-5 चीजों को आप मिला दोगे, आपके लिए CUET बिकम्स अ केक। अदर एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दीज टू इज IPU CET, जो गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड है, एंड उसमें आपको 2 कॉलेज हैं जो जाने लायक है। पहला आपको गुरु गोविंद सिंह का ओरिजिनल कैंपस जो है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल कैंपस कह रहे हैं, जो ULSS है, एंड सेकेंडली जो आपको विप्स है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट। तो ये 2 कॉलेजेस जो है वहां पे आप जा सकते हो इस एग्जाम के जरिए। यहाँ भी 100 मार्क्स का आपको पेपर होता है, 2.5 घंटे मिलते हैं, +4 आपको मिलता है करेक्ट क्वेश्चन करने पे, और -1 आपका होता है इनकरेक्ट पे। की डेट्स, तो इसके भी रजिस्ट्रेशन फेब में शुरू होती है, एग्जाम आपको अराउंड अप्रैल-मई के टाइम पे होता है। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको एग्जाम स्ट्रक्चर मिलेगा। लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग पहला सेक्शन होता है, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं क्लैट का ही पुराना वाला पैटर्न लीगल एप्टीट्यूड रहता है, 1 लाइनर टाइप के, और आपको बाकी सारे सेक्शन जो करते हैं। अब इससे क्या क्या कॉलेज है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, USLLS जो आपको IB यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, दैट इज अ गुड कॉलेज जो आप जा सकते हो आफ्टर दिस। एंड विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज विप्स जो है वो भी एक अच्छा कॉलेज है, वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर हैप्पी विद द कॉलेज। Now apart from that, if you want admission in Amity and other colleges, then also आपके रास्ते खुल जाएंगे। But apart from that, that is how, or that is the information that you needed about IB University. रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1200 हैं, इट कैन वैरी, सो अगले साल जब भी आप दे रहे हो एग्जाम एक बार चेक करना जरूरी होगा। Then in private you have some colleges like UPES. UPES is University of Petroleum and Energy Sciences, जिसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट होता है ULSAT,
ना ये जो एग्जामिनेशन है ये 5 साल के लिए है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सारी एडमिशन आपको 5 साल के कोर्स में मिलेगा। BA LLB हो सकता है वो, BBA LLB भी हो सकता है वो। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुका है अगर आप UPS की बात करें, एंड एप्लीकेशन डेडलाइन आपको अप्रैल तक होगा। एग्जाम जनरली मई में होता है, रिजल्ट भी आपको उसी समय पे अनाउंस हो जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, जहां पे आपको वो सेंटर पे नहीं जाना होगा, आपको रिमोटली प्रॉक्टर करते हैं, रिमोटली वो आपको देखते हैं और आपको अपने ही कंप्यूटर से घर के इत्मीनान में बैठ के एग्जाम देना है। सेक्शंस, ये सारे सेक्शन है, क्लैट वाले ही सारे सेक्शन आपको कवर्ड होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आपको वो है 150, एंड इसमें आपको करेक्ट पे 1 मार्क्स, नेगेटिव इसमें मार्किंग नहीं है। रीजनिंग का जो सिलेबस है बाकी सब कुछ सेम का सेम है। क्लैट एलेट के सिलेबस को मर्ज कर दो, यू विल हैव द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम एज वेल। Then another college in private universities is Christ, और Christ का भी अब बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत रिलायबल है और बहुत सारे बच्चे गए हैं जो संतुष्ट हैं। तो अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ इंट्रेंस टेस्ट, ये जो है आपको अगेन 5 साल का कोर्स है, 3 जगह पे इसकी कैंपस है। बेस्ट कैंपस बैंगलोर है, पहला कैंपस भी बैंगलोर है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करो तो अभी तक ज्यादा अपडेट आया नहीं है, लेकिन जब भी होगा एग्जाम सेंटर बेस्ड होगा। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। 90 मिनट्स के एग्जाम में आपको टोटल मार्क्स 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होगा, मतलब आपको ऑलमोस्ट 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने रहेंगे। जो करेक्ट आंसर होगा उस पे 1 मार्क्स मिलना है, नेगेटिव पे आपका 0.25 मार्क्स घट जाएगा। एंड बाकी जो सेक्शन का है वो सब कुछ वैसे का वैसा है। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये भी आप क्लैट के जरिए पढ़ चुके हो, क्लैट में भी यही आता था। नाउ तो सिलेबस में बार बार डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यू हैव द सेम थिंग, बट इफ यू वांट दिस PDF आई कैन सेंड इट टू यू एज वेल। मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इस वीडियो के, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेशनल क्लैट अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। आपको उस पर रेगुलर अपडेट्स और फ्री मटेरियल्स मिलते रहेंगे। एक फ्री मटेरियल जो मैं वहां पे डेली आजकल अपडेट कर रहा हूँ वो है आपको द हिंदू बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी टेस्ट्स फॉर डेली। तो लेट्स से आप पढ़ते हो, आप वोकैबुलरी करते हो, बट आपको पता करना है कि आप रिटेन रख पाते हो कि नहीं, तो आप चेक करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, उन PDFs को डाउनलोड करो, उनको बनाओ, एंड दैट विल इंश्योर कि जो वोकैबुलरी आप सीख रहे हो वो आपके साथ रिटेन कर रहा है। And then moving ahead, we have no other exam in my list because there are multiple colleges in India which will offer you a seat nonetheless. They are not demanding anything. They are just there to provide you a rank, a seat in their college. These are private universities and they are spread everywhere in India. So I don't need to like brand anyone. I don't need to promote anyone. Everybody knows about them. But if you want to go to a private university which at least has a basic base of alumni and has a consistent track record, then I would suggest you the names that I have just discussed in the classroom. So with that would be the end of this video. We are launching a online course, online class as well, online batch as well, because we are primarily an offline coaching center in Ranchi, but we are coming up with our online courses as well. So from this 15 December, our first online course is launching. If you want to join there, if you want to get a demo class, please feel free to message us or just join that Telegram channel for other important updates. The Telegram channel name is National Clat Academy. Thank you students. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Bye-bye.